आज बांग्लादेश के कुकृत्य देख करके ज्ञान की भूमि, शांति की भूमि आज हमारा युवा उद्वेलित हो उठा है कि अरे बांग्लादेश तुम चेत जाओ, माँ ढाकेश्वरी को तो खंडित किया है, इसलिए हम तुझे कभी माफ न करेंगे, न तुम्हारा लोक माफ करेगा, न तुम्हारा परलोक माफ करेगा। हमारा युवा शक्ति अब जाग उठा है। और याद करो तुम 76 और 72 का घटना, अभी तो एक खंड में हुए हो, आने वाला कल तुझे 4 खंड में कर देगा, खंड खंड हो जाओगे, रोहिंग्या बन करके पूरा विश्व में तुम दस्तक दोगे और हर जगह से निकाले जाओगे। आज हम आक्रोश के इस आक्रोश मार्च के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं बांग्ला सरकार को कि अभी भी चेतो, नहीं तो आने वाला दिन तुझे बर्बाद करके रख देगा। भोला मिश्रा बोल गया। দেখুন এটা আমি বাংলাতেই বলছি, ঠিক আছে। এবার একবার তো আমরা যন্ত্রণা নিয়েছি দেশভাগের সময়, আমাদের প্রচুর প্রচুর আত্মীয় আপনার ওই দেশ থেকে আমাদের এই দেশে মানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, আমাদের প্রচুর সম্পত্তি জমি জায়গা সব নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে আবার এই অত্যাচার শুরু হয়েছে। এবার আমার কাকা, আমার বড় পিসি এরা সবাই চলে এসছে বাংলাদেশ থেকে, আমার বাড়িতে সব ভয়ে তাদের বাড়ি ঘর দর আপনার জমি চাষের জমি সব ছেড়ে চলে এসছে। এবার এইগুলো হলে পরে আমরা বাঁচবো কেরম করে? আরে আপনারা তো একবার তো দেশভাগ করে একবার হিন্দু মুসলিম করেই দিলেন, তাহলে আবার কেন আমাদের হিন্দুত্বের ওপর এত অত্যাচার হবে? আমরা সেই সময় থেকে শুধুমাত্র আমরা হিন্দু বলে সয়ে এসেছি। একবার বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেল বাংলাদেশ পাকিস্তান করে, ঠিক তাতেও শুধুমাত্র হিন্দুরাই কেন পীড়িত হবে? আমরা কী দোষ করেছি? আমরা তো এই দেশে শুধুমাত্র জন্ম নিয়েছি, সেটা কি আমাদের দোষ? এটা একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ, সেখানে আমাদের সবাইকে একসাথে হয়ে থাকতে হবে। এখানে আমাদের মুসলমানদের ওপর এতখানি মানে প্রায়োরিটি মুসলমানরা যে পাচ্ছে, এটা আমরা সহ্য করতে আর পারছি না। কারণ তারা আপনার বাই ডিএনএ মারামারি করতে অভ্যস্ত, আমরা মারামারি করতে অভ্যস্ত নই। আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি, আমরা শিক্ষায় অনেক বেশি আমাদের বুনিয়াদ দেন এনি মুসলমান, কিন্তু আমাদেরকে এই স্বীকৃতি দিতে হবে, আমাদের শান্তি ফেরত দিতে হবে, আমাদের জমি জায়গা সব যাতে মানে আমরা ফেরত পাই, সেটা যদি দয়া করে আপনারা দেখেন, তাহলে পরে আমাদের এই প্রচার সার্থক হবে। ধন্যবাদ। बांग्लादेश की सरकार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। This totalitarian government is not selected. It's not elected. Sorry, it's not elected. It was selected. So that we have to raise our voice against this totalitarian government who supposed to making that kind of nasty chaos in over the Hindus over there, those who are staying over there, Hindus, okay, those who are staying those Hindus, those who are staying over there. This government totally doing that kind of rubbish kind of environment, making a rubbish kind of environment over there. हम लोग जो चाह रहे हैं कि जो हिंदूज वहाँ से अभी तक माइग्रेट हुए हैं, if we supposed to go to the West Bengal, whether it is South and North Dinajpur, whether it is Malda, all the peoples are totally from 10 years, from 20 years, they are migrated from that place to here only. Yes. Why it is? अगर कोई वहाँ पे कोई लड़की, अगर कोई परिवार पे अगर कोई लड़की वहाँ पे जन्म लेता है, तो पहले हिंदू परिवार में एक ही चीज़ उसके दिमाग में आता है कि मैं इसको कैसे इंडिया में ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है ना। ये जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई हिंदू परिवार ऐसा सोचता है, तो ये क्यों सोचता है? ये गवर्नमेंट बोल रहा है, ये यूनिट सरकार जो बोल रहा है अभी कि सब कुछ ठीक है, कैसे ठीक है? मूर्ति भांगा जा रहा है, हिंदू परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैमरा हो रहा है। इस्कॉन जो विश्व विख्यात है, ठीक है ना, जो विश्व में इतना शांति फैला रहा है, रोज़ा के टाइम पे हर वक्त शाम के टाइम पे जो रोज़ा का जो होता है वो इस्कॉन ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सब के बाद विद इन सिंपल स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ शेमफुल थिंग दैट यूनिट गवर्नमेंट हैज गिवन दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जितने भी हिंदूज घर में हिंदूज हैं, उसको आज अपने लिए नहीं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि राइट हम लोगों का राइट है और राइट के लिए कुछ बोलना ये कभी भी गलत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मोदी जी से आप क्या चाहते हैं? मोदी जी से हम चाहते हैं कि मोदी जी इस क्षेत्र में जाए और इसके बारे में सोचे और
पूरा जो मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको एक क्रिएट किए, और जो बिजली पानी जो है, ठीक है ना, जो हमारे देश से वहाँ पे सप्लाई होता है उसको बंद किया जाए और कठोर से कठोर एक्शन इस पे लिया जाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे हो रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं एक्चुअली वहाँ पे हो रहा है हमारे भाइयों के ऊपर, उसको जल्दी से जल्दी वो ख़त्म किया जाए। हिंदुओं पे अत्याचार। आपकी क्या उम्मीदें हैं मोदी गवर्नमेंट से? क्या मुक्ति वाहिनी के तौर पे कुछ किया जाना चाहिए? हाँ माने एकदम के माने आपका मोदी जी आपका सिर्फ माने आज का डेट में तो बांग्लादेश वाला कहानी हुआ, लेकिन इसके पहले तो बहुत सारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम में मोदी जी अपना टीम भेजे हैं और उन लोग को माने आप रेस्क्यू किए हैं। तो इन द सेम नोशन अभी जो माने आप हिंदू लोग को जस्ट एडजेसेंट टू इंडिया जो लैंड जो आपका जस्ट 1947 में आपका जस्ट जो आपका डिवाइड हुआ, वो तो उसके ऊपर जब ये कहानी चल रहा है तो अभी मोदी जी को सबसे पहले जस्ट फ्रंट अल्पसंख्यक को भारत में शिफ्ट किया जाए, फेस में आना चाहिए और एकदम टोटल हेल्प देके कम से कम हिंदू भाई को हम लोग को बचाए। ये हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं मोदी सरकार से। कोई पर्सनल तौर पे भी क्षति हुई है? कोई रिश्तेदार वगैरह? एकदम है, मेरा चाचा है श्री भानु भट्टाचार्य, यहाँ पर स्टेट है आपका कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट का आपका राजचंद्रपुर में है। मेरा आपका वो है आपका उसका नाम है क्या मायमन सिंह में है मेरा बुआ, जो हम लोग पीसी बोलते हैं। वो लोग सब है, वो लोग सब आ गए मैंने आपका फिलहाल रेस्क्यू के लिए मेरा घर में है। आप लोग चलिए कलकत्ता में, हम दिखा देते हैं। वो लोग वहाँ से आए हुए हैं यहाँ? हाँ एकदम डॉलर खरीद के जस्ट पास हुए हैं। वो लोग वीजा भी नहीं ले पाए, डॉलर खरीद के पास हुए हैं बॉर्डर। मतलब कि पीछे के रास्ते से आए? अब आके माने आप जस्ट कंटिन्यूअस फोनिंग हो रहा है कि मेरा जमीन यहाँ पर ठीक है, तो मेरा बाउंड्री ठीक है, तो वो तो तोड़ा नहीं, मेरा गाय लोग ठीक है, तो ये सब बात हो रहा है फोन में कंटिन्यूअसली। वो लोग का चेहरा आप देखिएगा तो आपको खुद आप लोग को दुख है। बांग्लादेश का अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस का, वहाँ अल्पसंख्यकों हिंदुओं बौद्ध जैनों सभी पे अत्याचार हो रहा है। वहाँ जो बांग्लादेश का अंतरिम सरकार के द्वारा कट्टरपंथियों को ज़्यादा समर्थन दिया जा रहा है, उनको खुली छूट दे दिया गया है कि वो अपना मनमानी करें। क्या आप लोग को लग रहा है कि भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए? भारत सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार इंटरनल रूप से जरूर कुछ न कुछ मंथन हो रहा होगा, चल रहा होगा, क्योंकि मामला बड़ा है, इसलिए इतना जल्दी कदम सरकार उठाना नहीं चाहती है, लेकिन जरूर कुछ न कुछ हो रहा हो अंदर। बांग्लादेश में आज के डेट में जो हिंदू बौद्ध सिख ईसाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे हम लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और बांग्लादेश के सरकार को हिदायत करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, सचेत हो जाओ। अभी तो हम लोग रोड पर उतरे हैं, बहुत समय दूर नहीं जब घुस के मारेंगे, बांग्लादेश में घुस के आतंकवादियों को मारेंगे। कट्टरपंथी जो है उसको हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। यूनुस सरकार मुर्दाबाद, यूनुस सरकार मुर्दाबाद। उसको देखिए आप, ये जो है बांग्लादेश का जन्म जी भारत का है जी, भारत ने ही बांग्लादेश बनाया है। भारत का एक पुत्र है, वो भारत ने उसको जन्म दिया है, लेकिन आज के डेट में वो बाप को ही उंगली दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए उसे हम लोग हिदायत करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो फिर से वही हाल होगा, तुमको फिर से पाकिस्तान में विलय होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान वाले कहीं ना कहीं ये चाल चल रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तान वाले का चाल हो या बांग्लादेश का हो या चाइना का हो, उसे हम अल्पसंख्यक को वहाँ अत्याचार नहीं सहेंगे। आक्रोश से हम लोग चल रहे हैं, उसी आक्रोश से बांग्लादेश के जो उनको समझना चाहिए, हमारा ये आंदोलन जो है उसको स्वीकार करके अपना इस्तीफा देना चाहिए। वो अत्याचारी सरकार होश में आए, अल्पसंख्यक मंदिरों को जैन बौद्ध सिख पर अत्याचार करना बंद करे, अन्यथा हम लोग भी लोहा उठाना जानते हैं, लोहा उठा करके उसे ध्वस्त करेंगे। ये बांग्लादेश जो भारत का जन्म दिया हुआ देश है, वो पहले पाकिस्तान से आजाद करवाया है भारत ने, लेकिन फिर भी वो भारत की नीति पर नहीं चलता। भूल गए हैं, वो अपना अतीत को भूल गए हैं। 71 और 72 का वही हर्ष करेंगे, मुक्ति सेना बनेंगे और जाकर के अपना
भी प्रतिशोध का बदला लूंगा। क्या लगता है कि भारत सरकार के नरेंद्र मोदी इस पर पहल करेगी, मुक्ति सेना बनाएगा मनोज? बहुत जल्दी देखा जा रहा है, संयम अगर टूटता है तो फिर वो अपना बाढ़ का रूप लेता है, तूफान का रूप लेता है और उसे मट्टी में हम नस्मों कर देंगे। ये बांग्लादेश के खिलाफ हम लोग आक्रोश मार्च, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अमानवीय अत्याचार के विरोध में ये मार्च निकाला गया है। वहाँ पे महिलाओं को लेकर के हिंदू, खास करके हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे हिंदू महिलाओं को, बौद्ध महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण जब हुआ, वहाँ के पंजाबी, सिंधी मुसलमान, बंगाली मुसलमान पर अत्याचार कर रहा था। बंगालियों ने अलग देश बनाने का मुहिम छेड़ा, तब जाकर उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसको अटल जी भी दुर्गा के अवतार कहे थे, उन्होंने बांग्लादेश को साथ दिया और भारतीय सेना को बंगालियों के मदद के लिए भेजा और भारत के मदद से बांग्लादेश को आजादी मिला 1971 में। और हिंदुओं ने चढ़ बढ़कर आजादी में भाग लिया और आज हिंदुओं के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहा है हिंदुओं पे, वो काफी निंदनीय है। 1951 में बांग्लादेश में 28% हिंदू था, लेकिन 2024 में आज 8% हिंदू हो गया है। आखिर 28% हिंदू आज 8% कैसे हो गया? जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम भारत के केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि बांग्लादेश को जब तक हिंदुओं के लिए वहाँ अलग देश नहीं बनेगा, तब तक हिंदू 100% सुरक्षित नहीं होगा। वहाँ 8% हिंदू है, 8% बांग्लादेश की भूमि को अलग करके हिंदुओं के लिए अलग देश बनाया जाए। और इसके लिए हम लोग आज मार्च निकाले हैं, सेव हिंदू इन बांग्लादेश। अरे एक बार पहले भी जो वहाँ बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ मुक्ति सेना बना करके, मुक्ति सेना को लेकर के मुक्ति वाहिनी द्वारा बांग्लादेश को जन्म दिया गया था। मुक्ति वाहिनी में ज्यादातर हिंदू थे और हिंदुओं ने बंगालियों को आजादी के लिए पाकिस्तान से लड़ा और बांग्लादेश आजाद भी हुआ। लेकिन आज जिस तरह से वही हिंदू जो आजादी के लिए लड़े, वही हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है। और जब हिंदुओं के सिक्योरिटी के लिए, हिंदुओं के राइट के लिए वहाँ के इस्कॉन के सबसे बड़ा संत चैतन्य दास आवाज उठाते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया गया और उनको ऊपर जुल्म किया गया। और जो चैतन्य दास को सपोर्ट में, जो कोर्ट में जो वकील लड़ रहा है केस चैतन्य दास के समर्थन में, उस वकील पे भी हमला हुआ है। यानी बांग्लादेश में, बांग्लादेश के कोर्ट में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, वकील सुरक्षित नहीं है। और वहाँ के जो कार्यकारी अध्यक्ष है बांग्लादेश का, नोबेल पुरस्कार उसको मिला था शांति के लिए, लेकिन वो व्यक्ति शांति के लिए नहीं, आज वहाँ जो है जमात इस्लामी जो है बांग्लादेश में हावी हो गया है और वो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, हिंदू संतों को वहाँ हत्याएं हो रही है। हम समस्त हिंदू, भारत में 80% हिंदू है, 112 करोड़ हिंदू है, पूरे विश्व में 120 करोड़ हिंदू है। हम पूरे दुनिया के 120 करोड़ हिंदू ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को 100% सुरक्षा मिले। नहीं, देखिए अभी आप लोग मोदी सरकार से क्या चाहते हैं? मोदी सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, भारत के विश्व गुरु को रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं और लोग मोदी से बड़े प्रभावित भी हैं विदेश में। देखिए, नरेंद्र मोदी से तो बहुत आशा है हिंदू समाज को, लेकिन अभी तक वो बांग्लादेश पे जो उन्होंने कदम उठाया है वो हमारे लिए प्रशंसनीय नहीं है। वो काफी शांत है, उनको हार्ड एक्शन लेना चाहिए और जरूरत पड़ी तो इंडियन आर्मी को भी बांग्लादेश में दखल देना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ का जो कट्टरपंथी है, वो नकादम जैसे कुत्ता भूखता वैसे भूख रहा है। भारत अभी देख रहा है, कुत्ता की तरह हिंदुओं को नोच के खा रहे हैं, महिलाओं को नोच के खा रहे हैं। तो वो समझिए कि क्या होता है, जो कुत्ता होता है तो वो क्या करता है, लोमड़ी की तरह नोचता है ना। अभी वो
भारत अभी देख रहा है। जब उसको पता नहीं है कि पाकिस्तान से भारत उसको बांट के दिया था, अब पाकिस्तान से भारत बांट के दिया था, तो उसको बंटवाने में भारत को कितना देरी लगेगा। वहाँ की सरकार होश में आ जाए। अब अगर होश में नहीं आया तो उसको 4 से 5 टुकड़ा किया जाएगा और उसको 5 देश बनाया जाएगा। उसमें एगो हिंदुओं का देश होगा, एगो बुद्धिस्टों का देश होगा, अलग अलग देश बनेगा। उसको में अलग अलग देश को बांट दिया जाएगा। आपको लगता है कि मोदी जी मुक्ति वाहिनी सेना बनाएंगे? बनेगा, इसलिए बनेगा कि वहाँ की जो सरकार है, कोई भी पड़ोसी मुल्क है, जब पड़ोसी मुल्क नहीं रहेगा सही तो हम भी चैन से नहीं न रह पाएंगे। इसलिए हमको भी कर्तव्य बनता है कि उसको सुधारना। अब यहाँ जब नहीं सुधरेगा वो तो यहाँ का जनता सुधार देगा। सरकार होश में आवे, इसके ये आक्रोश निकालने का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार अपना निगाह बांग्लादेश की तरफ करे। आप चाहते हैं कि मोदी जी जो है मुक्ति वाहिनी सेना बना करके फिर से मुक्त करे वहाँ के हिंदुओं को? जी, हम चाहते हैं कि मोदी जी तक ये संदेश जाए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू, बौद्ध, जैन जो भी हिंदू संगठन है और मंदिर को तोड़ना वहाँ का सरकार बंद करे। इस तरह से वहाँ पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सोची साजिश के तहत उन पे हमला किया जा रहा है। वहाँ के बहन बेटियों के जो हिंदू धर्म के हैं उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है। इन्हीं सब के खिलाफ आज हम सभी हिंदू समाज, बौद्ध समाज और बांग्लादेश के भी भिक्षु लोग मिल करके आज बोधगया में आक्रोश मार्च निकाले हुए। ये बंद होना चाहिए जो बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पर हमारे हिंदू समाज के, बौद्ध समाज के लोग अल्पसंख्यक हैं, इसी तरह भारत में भी अल्पसंख्यकों को किस तरह से हम लोग रखते हैं, जो मुस्लिम समाज हो या और भी समाज है, उनसे सीखना चाहिए उनको और उसी तरह से वहाँ पर उनको भी रखना चाहिए। बंद करना चाह रहे हैं? क्या बंद करना चाह रहे हैं? अरे हिंदू पे अत्याचार बंद करना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। यस, बंद होना चाहिए, अभी बंद होना चाहिए जी, अभी। मोदी जी से क्या उम्मीद है कि बंद करवाए? मोदी जी से कोई भी उम्मीद है बंद करवाएं? अभी बंद करवाइए, अभी। मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं और तो कौन करेगा। एक्शन लेना चाहिए उनको। उम्मीद है कि हमारे हिंदुओं को सुरक्षित लाए, भारत देश वापस लाए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, हमारी मंदिरें नहीं टूटे। बांग्लादेशी सरकार, बांग्लादेशी सरकार, भारत माता के। देखिए यहाँ पे क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि हर हिंदू को एक अच्छा सा घर मिले, उन लोगों को सम्मान मिले, क्योंकि हर हिंदू तो पहले सनातनी ही थे, तो उन लोगों को एक भारत सरकार को रास्ता दिखाया। बांग्लादेशी सरकार मोदी जी से क्या उम्मीदें हैं? मोदी जी से उम्मीद है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को कुछ उन्हें सम्मान दिलवाया, भारत देश में बुलाए, उनको सम्मान दे जगह। देखिए ये बच्चियां भी कह रही है कि जो है मोदी जी से उम्मीद है कि जो है वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित किया जा रहा है। क्या चाहती हैं मैडम आप? चाहते हैं कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में वो बंद हो जाए और उनको शांति से वहाँ पे रहने देना चाहिए, बस यही चाहते हैं। लोगों को, सारे हिंदुओं को एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ आके आवाज़ उठानी होगी कि उनको भी जीने का हक है और उनके लिए हम सबको साथ में आके उनको सुरक्षा प्रदान करना होगा। मोदी जी से क्या उम्मीद है आप लोग लेकर के चल रहे हैं? मोदी जी के साथ साथ हम सबको भी है कि सिर्फ कि वो वहाँ पे लोग वहाँ की जो शासन है, वहाँ की जो सरकार है उससे बात करे, और अगर नहीं कर सकते तो वहाँ पे जो हिंदू है वहाँ को यहाँ बुला ले ताकि वो खुद को सेफ महसूस करे। वहाँ पे जो लड़कियों के साथ जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो आंख बंद करके बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, करना पड़ेगा। तो बस उसको करने के लिए हर किसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा। एक के करने से कुछ नहीं होगा, पर एक के करने से बहुत कुछ होगा। तो वही है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये सब बंद होना चाहिए, हिंदुओं को सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें तो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हिंदू, हमारे भाई बहन, बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। उनको आज़ाद वहाँ से करवाना चाहिए, जितनी भी यातनाएं उन पे हो रही है उनसे मुक्त करना चाहिए उन्हें। धन्यवाद। जोर से बोलो। हाँ, तो देखिए ये लोग जो है, बच्चे भी जो है अपने पूरे जोश और जुनून के साथ जो है बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो बर्बरता हो रही है, आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, आक्रोश मार्च। हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है और वहाँ की सरकार किसी काम की नहीं है, उसको जितना जल्दी हो सके हटाना चाहिए।
तो पूरे देश तहस नहस हो जाएगा। ये पूरे विश्व के लिए खतरा बनते जा रहा पूरे विश्व के लिए खतरा है। है। ये कमजोर हाथों में चला गया है वहाँ का देश। सरकार नाम का चीज वहाँ है ही नहीं, ये तो हाथ का कठपुतली है। ह्यूमन राइट मानवाधिकार को लेकर भी कुछ वहाँ पे नहीं, कुछ नहीं होगा की तरफ से बोला जा रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये गलत लोगों के हाथ में चला गया है।